6 पर श्री राजीव चंद्रशेखर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, क्रम संख्या 8 पर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्रम संख्या 9 पर डॉक्टर सुभाष सरकार फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और क्रम संख्या 10 पर डॉक्टर भगवत कृष्ण राव कराड़ फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो दस्तावेज हैं उनको आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइटम नंबर 11 डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 11 पर सूचीबद्ध अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां के कल्याण संबंधी समिति 2011-2022 के 6ठे और 7वें प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 12 श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी। Sir, I beg to present the 13th report, Hindi and English, of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution, 17th Lok Sabha, on the subject procurement, storage and distribution of food grains by Food Corporation of India of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution System, sir. आइटम नंबर 12A श्री अर्जुन राम मेघवाल। Thank you, Chairman sir. With your kind permission, I rise to present the 24th report of the Business Advisory Committee. आइटम नंबर 13 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Thank you, Chairman sir. With your kind permission, I want to make the following statement regarding number 1, the status of implementation of the recommendations contained in the 277th report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demand for grants 2020 and 2021 pertaining to the Ministry of Culture. Number 2, the status of implementation of the recommendation contained in the 282nd report of the Standing Committee on the Transport, Tourism and Culture on action taken by the government on the recommendation/observations contained in 277th report of the Committee on demand for grants 2020 and 2021 pertaining to the Ministry of Culture. Thank you. आइटम नंबर 14 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय सभापति लोकसभा के अनुदेश 73A के अनुसरण में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग 2021-22 के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति की 323वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों की कार्यान्वयन स्थिति का विवरण सदन का सभा पटल पर रखती हूँ। श्री अजय भट्ट जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रमांक 15 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2021-22 के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 228वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। श्री सर्वानंद सोनोवाल जी। Sir, I rise to move for leave to introduce the National Commission for Homeopathy Amendment Bill 2021. नंबर 17 श्री सोनोवाल जी। अच्छा पहले अच्छा श्री अधीर रंजन जी। Accepted, sir. अधीर जी I rise थोड़ा to हाउस move for leave. थोड़ा सा प्लीज कॉल योर फेलो MPs टू कम टू देयर सीट्स। सर आपकी संज्ञान भी ये माइक नहीं दिया आपने। सर आपकी संज्ञान में मैं ये लाना चाहते हैं कि आज सारे विपक्ष दलों ने इकट्ठा होकर हमने चर्चा की है और एक मिनट सुनिए ना सर, ये आपको संज्ञान में लाना चाहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 127 को हम 127
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को आज सदन में इंट्रोडक्शन और श्री मनीष तिवारी जी, सर एक बात प्लीज और पारित करना। Mr. Chairman, sir. Mr. Chairman, sir. again from your party, please. Mr. Chairman, sir. Please the let him bill speak. cannot be moved in this manner. The manner in which legislative business is being conducted in this House is in violation of Article 107 of the Constitution. It is in violation of Rules 74 and 76 Please, of the Saurabh Rules of Ji. Procedure. Sir, I oppose the introduction of the bill to amend the National Commission for Homeopathic Act 2020. It is in violation of the rules of the House, and the government brought an ordinance to amend the National Commission for Homeopathy Act. It will distort the homeopathic profession. I want that the bill be withdrawn and that statutory resolution given by us opposing the ordinance should be withdrawn and it should be put to vote. माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे? Sir, this is a very important amendment and this is absolutely necessary, and I believe the honorable member must appreciate the move because it is for the betterment of the homeopathy in the country. यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 17 श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। Sir, I rise to move for leave to introduce the National Commission for Indian System of Medicine Amendment Bill 2021. अधीर रंजन जी। I shall stand to oppose the introduction of the bill in such a brazen manner because for the last few days we have been demanding for the discussions on Pegasus Snoopgate, which is concerning the entire country. स्वागत राय जी, सर केवल बिल पर बोलिए। बिल पर आपको देश के मुखिया कहते हैं कि हम सेल बोल देते हैं, लेकिन सदन के अंदर लोकतंत्र की ब्लैक होल पैदा किया गया है। सदन के अंदर लोकतंत्र की हद तक। सभापति जी ये गलत बोल रहे हैं अधीर रंजन जी। हम सरकार भी हर चर्चा के लिए जा रहे हैं। हमने चर्चा के लिए सब्जेक्ट तय किए थे बीएससी में। Mr. Chairman, sir, no bill can be moved till the House is not in order. No bill can be moved till the House is not in order. Democracy is being voted in this जानकारी House. दे रहे हैं सभापति जी, सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 18 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। महोदय, भारत के संविधान और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। श्री अधीर रंजन जी प्लीज केवल बिल के संबंध में बोलिए। आर यू अपोजिंग और सर आप बताएं। जी जी प्लीज। सर इस तरीके की गतिरोध मत किया जाए। सर मेरा बात सुनने की धैर्य रखिए। आप इस बिल पे क्या सर बात यह आप है, मत बोलिए। योर लीडर स्पीकिंग। सर बात यह है कि प्लीज सर आप बैठ जाइए, इधर सर पे बैठ बात जाइए। यह है कि सदन की एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होने की नाते एक जिम्मेदारी हम जानते हैं और इसके लिए आज सारे विपक्ष दलों ने आज ये फैसला लिए हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 127 ये जो आप इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जिसके साथ हिंदुस्तान की हमारे पिछड़े वर्ग की लोग की ताल्लुकात है। हम लोग ये सदन में जब 102 अमेंडमेंट बिल पास किया गया था, बोलने दीजिए, जब ये सदन में 102 अमेंडमेंट बिल पास किया गया था, हम लोग सरकार को ये नसीहत दी थी, ये सचेत किया था कि आप प्रदेशों की अधिकार को हनन मत किया करो। लेकिन ये सरकार हमारे बात सुनना नहीं, ये बहुमत की बाहुबली से हमारी बात नहीं सुने गए। लेकिन आज
आज क्या हुआ? आज जब हिंदुस्तान की आम लोग, हिंदुस्तान की पिछड़े वर्ग लोग जब आंदोलन रहते हैं तो ये उनकी आंदोलन की डर के मारे चपेट में आ चुके हैं। हो गया, और अभी ये मानने के लिए सभापति महोदय, ये विरोध केवल राजनीतिक आधार पर विरोध है। इनके जो शासित राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा भी लगातार इसको बिल्कुल लाए जाने की मांग की जा रही है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसको प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। सभापति जी मैं बिल्कुल प्रस्तुत करता हूं। सभा की कार्यवाही 12:30 तक के लिए